कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो गया है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो गया. सो व्हाट आर दोज 3 languages that we have to pick up and what are the changes? Surprise, English is now a foreign language. So if English is chosen as foreign language, there are schools particularly in North India जहाँ पर French को भी preference मिल रहा है as a foreign language priority. Otherwise most of the 99 schools are picking up English as a foreign language. The question comes, when to start teaching R3? How to do it? Which classes to pick? Language 3 is compulsory. But क्या 9th क्लास को इसी साल पढ़नी है लैंग्वेज 3? No. क्या 10th को पढ़नी है? बोर्ड आएगा? No. तो कब कब कौन सी क्लास में संस्कृत लैंग्वेज और लैंग्वेज 3 का पेपर होने वाला है? Let's check. Welcome dear children and our parents. So our today's series is about the recent changes in our secondary school curriculum. Secondary school curriculum includes 9th and 10th. So let's check कि क्या है इसमें, क्या changes लाए हैं CBSE ने. So I have the PDF, authentic PDF of curricular changes part 1 of senior secondary school. Let's go 9th and 10th class for the session 2026-27. जो हम कवर करने वाले हैं वो है languages. Okay, so what is the change in the languages? आप सबने अभी सुना ही होगा, it's all in the news कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो गया है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो गया. So what are those 3 languages that we have to pick up and what are the changes? तो according to CBSE 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को हमें इंक्लूड करना है, हिंदी, इंग्लिश एंड ऑब्वियसली 42 अदर लैंग्वेजेस है हमारे पास ऑप्शन में. इन सब में से हमें डिजाइन करना है अपना लैंग्वेज करिकुलम फॉर सेकेंडरी क्लासेस. सो नाउ यू हैव 3 languages. Out of the 3 you have to take 2 regional or Indian languages and 1 foreign language. To our surprise, English is now a foreign language. So if English is chosen as foreign language, there are schools particularly in North India जहाँ पर French को भी preference मिल रहा है as a foreign language priority. Otherwise most of the 99 schools are picking up English as a foreign language. So out of 3, 1 language is done, that is English. Now we are left with 2 regional languages. One has to be mother tongue and one has to be other instructed language. So what we schools are doing, one language will be Hindi. Okay, that is also fixed. Now the third language. Third language options are, you can pick Urdu, you can pick Bengali, your regional Punjabi regional language. So we are choosing Sanskrit. So now the question comes, when to start teaching R3? How to do it? Which classes to pick? Right? So ये भी CBSE ने हमें बताया हुआ है. As you can see here, class in which R3 is compulsory. So these are the classes जिसमें compulsory है. That means from 6th class onward till 10th class, language 3 is compulsory. But क्या 9th क्लास को इसी साल पढ़नी है लैंग्वेज 3? No. क्या 10th को पढ़नी है? बोर्ड आएगा? No. तो कब कब कौन सी क्लास में संस्कृत लैंग्वेज और लैंग्वेज 3 का पेपर होने वाला है? Let's check. 2026-27 this is the session. क्लास 6th में हमें संस्कृत को डालना है. As we are choosing Sanskrit as a third language. So हम क्लास 6th में डालेंगे इस बार से. तो 6th क्लास के बच्चों be ready if you are studying some foreign language like French alongside Hindi and English. तो आपको वो ड्रॉप करना होगा और आप उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं. सो नाउ द थर्ड लैंग्वेज, बट इट्स बिट डिफिकल्ट, 4 लैंग्वेजेस को कवर करना, इतने पीरियड्स निकालना, इट्स बिट डिफिकल्ट. बट इट्स मैंडेटरी कि हमें 6th क्लास में इस सेशन में संस्कृत देनी होगी. 7th क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन से संस्कृत पढ़ाएंगे. कुछ स्कूल्स क्या कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, इवेंचुअली 6th में आपका बच्चा अभी 26 में अगर संस्कृत पढ़ रहा है तो उसे 30-31 में बोर्ड एग्जाम देना है संस्कृत में, तो उसका बेस अभी से बनना शुरू होगा, तभी तो बोर्ड दे पाएगा. तो एक और चीज कर सकते हैं, जो स्कूल 7th और 8th में, जैसे बच्चे ने 6th में फ्रेंच पढ़ा होगा लेकिन अब आपको पता है इवेंचुअली उसे संस्कृत में पेपर देना है, सो वी कैन डू वन थिंग, हम 7th को भी बेसिक या ब्रिज कोर्स करा सकते हैं संस्कृत का. मतलब जो बुक 6th क्लास में संस्कृत की लगी हुई है, बेसिक फाउंडेशन कोर्स की बुक, वही 7th भी पढ़ ले, वही 8th भी पढ़ ले. अभी
इंस्टेड ऑफ फ्रेंच और द अदर फॉरेन लैंग्वेज। इससे क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा आपके बच्चे का, और जब वो 10th बोर्ड में जाएगा तो फ्लाइंग कलर्स के साथ, बहुत अच्छे स्कोर के साथ वो अपने थर्ड लैंग्वेज को भी पास कर लेगा। तो 7th में आप नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे संस्कृत, 8th में उससे भी नेक्स्ट सेशन, दैट मीन्स 28-29 में इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर आपको 1 स्टेप अहेड रहना है तो आप अभी तीनों क्लासेस में एक साथ लगा सकते हैं संस्कृत को विद 6th क्लास फाउंडेशन बुक, ताकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए एज अ लैंग्वेज। देन 2029-30 में आपका बच्चा फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ेगा 9th में, एंड 31st में 10th में, और 10th में जाकर वो रिटन बोर्ड एग्जाम देगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर R3 कंपल्शन। R3 जो लैंग्वेज है आपकी, उसका कंपल्सरी क्या रूल है, और उसमें आप अपने लेवल पर क्या चेंज कर सकते हैं कि आपके बच्चे का जो बेस है उस लैंग्वेज का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग वेरी डिफरेंट, बिल्कुल नया आने वाला है, बच्चे घबराए नहीं। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। Schools can pick this method of choosing the R3 language and introducing it in 7th and 8th this session only. So 6th में तो आपको करना ही है, 7th और 8th में इट्स योर चॉइस, 9th और 10th में अभी हम नहीं करेंगे, दे विल कंटिन्यू विद देयर 2 लैंग्वेजेस एज मेंशनड इट, जिसको हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर में एज मेंशनड इन। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एज यू कैन सी हियर, अभी जो एग्जाम होगा 2026-27 में, उसमें लैंग्वेज 3 का कहीं भी पेपर का मेंशन नहीं है, तो बच्चे को नहीं पढ़नी है। 10th में भी अभी जो बोर्ड देंगे लैंग्वेज 3 ऑप्शनल है, कब तक, 29-30 तक, तो अभी तो कोई हमें देना नहीं है बोर्ड एग्जाम, ना बच्चे को उस लैंग्वेज को पढ़ना है और ना 9th को पढ़ना, उनको 28-29 में जाके पढ़ना, जो भी हमने ऊपर चेक किया था, राइट। सो थैंक यू सो मच, डिसाइड, बी वेल प्रिपेयर्ड, इट्स इजी वे टू गो। थैंक यू।